अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं जैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना मजदूर यूनियन का रियासती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें टीजीएस के सदर प्रोफेसर कोडंडा राम मेहमान खुसूसी थे। मुशीराबाद దగ్గర నుంచి శంకర్మఠ్ నుంచి ముషీరాబాద్ దాకా సికింద్రాబాద్ దాకా నడుచుకుంటూ పోయి వచ్చే ఇవాళ అటువంటి వాళ్ళందరికీ ఒక ఊరట పోయి రావచ్చు, బస్ ఎక్కి రావచ్చు. ఇంకెవరిలో తీసుకుపోయి దించుతున్నటువంటి ఎదురు చూపుల అవసరం లేకుండా తమ కాలం మీద తాము నిలబడి తమ బతుకు తాము బతకగలుగుతున్నారు. దాంతో జరిగిన ఒక మార్పు ఏంటంటే ఆర్టీసీకి గుర్తింపు వచ్చింది. ఇది వాటికెన్నడూ పోయిన 15-20 సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ లేనటువంటి గుర్తింపు ఇవాళ ఆర్టీసీకి వచ్చింది. ఈ బస్సు లేదే నడవదు, ఈ బస్సే మంచిది, ఇది ఉండాలి అని ఇవాళ ఊళ్ళో మహిళలు కోరుకుంటున్నారు. మాకు ఈ ప్రయాణం మంచిదే, ఈ సౌకర్యం మాకు కావాలి, మాకు ఈ బస్సు కూడా ఇవ్వాలి అనేటువంటి మాట ఇవాళ చాలా సీరియస్ గా ప్రతి దగ్గర మహిళలు కోరుతున్నారంటే ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ యొక్క అవసరం అందరికీ తెలిసింది. బస్సుతో లాభం ఏంటంటే సమయానికి చేరుస్తుంది. ప్రైవేట్ బస్సు అయితే నిండేలా కాగుతుంది, ఆర్టీసీ బస్సు అయితే సమయానికి తీసుకోపోతుంది. ఆర్టీసీ బస్సు అయితే ఎంతమంది ప్రయాణికులు వచ్చి పంపుతారు. ప్రైవేట్ బస్సులు అయితే అట్లా కాదు, అది నిండేదాకా ఆగాలి. ఇవన్నీ సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆర్టీసీ అయితే సమర్థవంతంగా యాక్సిడెంట్ జరగకుండా మన గమ్యానికి చేరుస్తుంది. ఆ సౌకర్యం మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది. అన్ని విధాలుగా ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కే మనుషులు నిమ్మగా నిద్ర ఉండరు. ఇది గ్యారంటీ ఇంటికి తీసుకుపోతుందనే నమ్మకం. అట్లాంటి ఆర్టీసీని అలా పునరుద్ధరించేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతున్నప్పుడు మనమందరం సంబరపడాలి, దాన్ని ప్రోత్సహించాలి. ఇంటిని బస్సులు మేము పనిచేస్తాం, మహిళలకు లాభం చేస్తాం అనేటువంటి మాట కూడా మనం అడగవలసిన అవసరం ఉంది. అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ మా సంగతి ఏంటి అని కూడా మనకు డౌట్ ఉంటుంది. అదే అసలు సమస్య. మన సమస్య ఏంటంటే ఒక చాలా ఏళ్ళ నుంచి మనకు రావాల్సినటువంటి వేతన సవరణ జరుగుతుంది. ఇప్పటికి 2 ఇంకా కొద్ది రోజులు దాటితే 3 రోజులు కూడా అయిపోయింది. ఈ రెండింటిలో ఒకటైనా తక్షణం ఇస్తే బాగుండదు అనేది మనకున్న కోరిక. మాతో పాటు గవర్నమెంట్ లో చేరినటువంటి వాళ్ళకు మాకైతే డబ్బులు జీతం వస్తే మాకు వాళ్ళు తీసుకుంటే జీతంలో సగమే తగ్గితే మాకు కూడా బయట ఎక్కడైనా ఇజ్జత్ మనం అనిపిస్తున్నది. ఇట్లా కాకుండా మీరు చూడాలి అనేటువంటి కోరిక ఇలా ఆర్టీసీలో. కాబట్టి ఇలా 2 సమస్యలు. ఒకటి ఏంటంటే దాదాపు మన రక్తం పీల్చేస్తున్నారు జనగణతి. रियासती हुकूमत के जेर एहतमाम महकमा पुलिस की जानिब से भैंसा एएसपी कांति लाल सुभाष पाटिल आईपीएस के जेर क़ियादत भैंसा मंडल के मुख्तलिफ मुआज़ात में रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नाइलो के अलावा सब इंस्पेक्टर श्रीकांत और टीएसएसपी पुलिस अमला मौजूद था। इस दौरान मज़कूरा पुलिस ओहदेदारों ने अवाम में शऊर बेदार करते हुए मौजा तिम्मापुर से मौजा वानलपाट तक रोड सेफ्टी बेदारी बाइक रैली का इनकाद अमल में लाते हुए रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ पोस्टर्स की रस्में इजराई की। कैंपेनिंग ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తరఫున రోడ్ సేఫ్టీ క్యాంపెయినింగ్ ఉంది. రిగార్డింగ్ ఈ సంబంధ రోడ్ సేఫ్టీ సంబంధ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. రిగార్డింగ్ దట్ ప్రతి వర్షం డైలీ ప్రతి వర్షం 2023లో ऑल ओवर इंडिया 1.6 लाख पीपल डेथ होती. 1.6 लाख लोग मर गया. तेलंगाना में भी उसमें ज्यादा लोग मर गया. भी చాలా పెద్ద నంబర్ ఉంది. ఒకటి स्मॉल रीजन कोई हेलमेट नहीं पहना, कोई ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है, उसकी वजह से छोटे रीजन की वजह से डेथ हो रहा है. अगर किसी का मेन इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर का फैमिली प्रभारी का डेथ होता है, पूरा फैमिली सफर करता है. चिन्ना पिल्ला होती, वाइफ, मदर फादर, पूरा फैमिली सफर करता है. तो रिगार्डिंग उसी के लिए अन्नी प्लीज वियर द हेलमेट. वानलपाडलो చాలా ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ ఉంది, నేషనల్ హైవే ఉంది. तो डेली मोर देन 1000-2000 से भी ज्यादा व्हीकल से ऐसे जाते हैं. तो क्रॉसिंग लो सब लोग विजिलेंट रह के क्रॉसिंग वगैरह अच्छे से कीजिए.
అండ్ ఈ प्रेजेंट जनरेशन లో చాలా स्पीडिंग क्रेज ఉంది. अभी छोटे छोटे बच्चे भी रहते वो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते. इट చాలా डेंजरस ఉంది क्योंकि इतना स्पीड से गाड़ी चलाने से वो लोगों का एक्सीडेंट होगा तो उनको भी कुछ डैमेज होता है. తర్వాత जो अपोजिट पार्टी अगर कुछ होगा उनको एक्सीडेंट डैश होगा उनको भी बहुत कुछ इंजुरी होता है. ది लॉस इज చాలా పెద్ద ఉంది. फैमिलीज लॉस्ट, फैमिली पूरा रोड पे आ जाते एकदम इम्पोर्टेंट आदमी मर गए तो. తర్వాత 3 ट्रिपल सीट्स, अगर ट्रिपल सीट्स गाड़ी चलाए तो ज्यादा जल्दी कंट्रोल नहीं होता है गाड़ी. आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा ट्रिपल सीट अगर गाड़ी चला रहे हो तो जल्दी कंट्रोल नहीं होता. इसलिए ट्रिपल सीट చాలా डेंजरस है చాలా. तो इसीलिए ट्रिपल सीट पे भी गवर्नमेंट ने ज्यादा फाइन्स वगैरह लगाए. तो 2020 లో బైన్సా డివిజన్ లో ముదల్ తాలూకాలో 50 డెత్ ఉంది అది యాక్సిడెంట్ లో. తర్వాత 2022 లో 43 ఉంది. and the last year only 30 because of continuous तेलंगाना पुलिस प्रेजेंस और पुलिस का एफर्ट की वजह से पुलिस इवनिंग में जो रोड पे रहती है ताकि ट्रैफिक कंट्रोल कर सके, जो भी ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं कि उसकी वजह से हम लोग एवरी ईयर से नंबर्स कम कर रहे हैं. तो पुलिस का पूरा योगदान है लोगों को सेफ्टी करने के लिए और पुलिस पूरा प्रेजेंट रहती है लोगों के सेफ्टी के लिए. तो सबसे यही रिक्वेस्ट है पुलिस का कि रूल्स फॉलो करिए. एंड తర్వాత रोड क्रॉसिंग मेजर चिन्ना चिन्ना पिल्ला स्कूल्स जाने वाले जो लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको रोड क्रॉस कैसे करना है ये आपका जिम्मेदारी है. जो बड़े लोग हैं यहाँ पर उनका जिम्मेदारी रहता है छोटे बच्चों को रूल्स सिखाना. తర్వాత ओवरलोडिंग ये रिक्शाज एंड अदर टेम्पोज जहाँ पर भी ओवरलोडिंग दिखता है, अगर पब्लिक ही रिफ्यूज करेगा, पब्लिक ही मना करेगा उस ऑटो में चढ़ने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ऑटो ड्राइवर्स भी बोलेंगे कि नहीं 3-4 सीट से लेके जाएंगे. तो पब्लिक जैसे पब्लिक रिएक्ट करेगा वैसे सब लोग रिएक्ट करेंगे. इसलिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए क्योंकि छोटा छोटा स्मॉल एक्सीडेंट से भी अभी रिसेंट लास्ट ईयर मोदल ओनली हेलमेट नहीं था, ओनली स्लो स्पीड से गाड़ी जा रहे थे बट हेलमेट नहीं था. स्मॉल स्लिप हैपन और सीधा सर के ऊपर गिरने से वो मर गया ऑटोमेटिक. स्पीड वाज छोटा था बट हेलमेट नहीं था. तो हेलमेट ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. హెల్మెట్ వాల్యూ ఇది పెద్ద ఉంది. हेलमेट ओनली 1000-2000 रुपीज లో ఉంది बट योर लाइफ आपका जीवन बहुत कीमती रहता है. तो सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए. अगर 5 मिनट कहाँ पर लेट भी पहुंचे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं हो जाता. एवरीथिंग इंग्लिश लो जबता एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट योर फैमिली एंड लाइफ. तो अच्छे से सब लोग रूल्स फॉलो कीजिए. पुलिस तरफ से यही रिक्वेस्ट है और पुलिस भी जितना हो सके उतना लोगों को अवेयरनेस कर रही है कि चालान्स भी आपके इसलिए इम्पोज करते हैं कि आपको आपकी लाइफ की वैल्यू पता चले. और पुलिस तरफ से सबको धन्यवाद. आज रैली में जिसने पार्टिसिपेट किया, सरपंच मेंबर, తిమ్మాపూర్ విలేజ్ మెంబర్, వనల్పాడ్ విలేజ్ మెంబర్ అన్ని పోలీస్ తరఫున ధన్యవాद और थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सक्सेस. थैंक यू. तेलुगु युवा हम मल्लिका जिगरी पार्लियामेंट के जेर एहतमाम हर महीने के पहले इतवार को अन्य नगरी मूर्तियों को खिराज अकीदत पेश करने के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मन संपदा मन्ना अति गमरम मन्ना NTR के नाम से तेलुगु के बानी सदर अप्पल हल्के के देशम पार्टी अंजहानी श्री नंदमूरी तारका रामाराव ने मूर्तियों को गुलहाए अकीदत पेश किया और नजराना पेश किया. कटबल्लापुर हल्के निजामपेट के कॉरपोरेशन प्रगति नगर 22-23 डिवीजन के 100 अफराद पर मुश्तमिल अफराद को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुतारुफ कराया गया. 6 जमानतों और रेवरन गारंटी की हुकूमत के जरिए किए गए प्रोग्रामों की तरफ मुतवज्जा हुए और कटबल्लापुर हल्के कांग्रेस की पार्टी की क़ियादत में आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे. इंचार्ज कोल्लन हेमंत रेड्डी इस मौके पर कोल्लन हेमंत रेड्डी और ने कहा कि सबको इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतारफ कराई गई 6 जमानतें सबको दी जाएंगी. कांग्रेस के सीनियर कायदीन कोल्लन श्रीनिवास रेड्डी, निजामपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कांग्रेस के सुदूर कोल्लन राजशेखर रेड्डी, निजामपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खातून सदर इंदिरा रमेश इंद्राविंद,
वीर बाबू, टेकोला प्रवीण रेड्डी, महेश, श्री सेल्लम यादव, रफत, अमृता राव और कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि अगर बीजेपी लोकसभा में दोबारा जीत जाती है तो ये मुल्क के लिए एक बड़ी तबाही होगी और मुल्क को इससे तबाही से बचाने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि मशवरा दिया कि लोक इंतखाबात बहुत अहम हैं और जमहूरी और सेकुलर ताकतों को जल्द अज जल्द सेट एडजस्टमेंट का अमल मुकम्मल करके बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी करनी चाहिए। ये इंकशाफ हुआ कि सीपीआई ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ बातचीत शुरू कर दी है और सीपीआई पूरे मुल्क में मुनासिब सीटों पर मुकाबला करेगी। हैदराबाद के मखदूम भवन में सीपीआई की 3 रोजा कौमी कमेटी के इजलास इतवार को इख्तिताम पजीर हुआ। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी रामकृष्ण पांडा, डॉक्टर नारायणा, सैयद अजीज, लोक पक्षा लीडर बनिए विश्वाम और सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोन्नेनी सांबा शिवा राव के साथ सीपीआई की रियासती सेक्रेटरी कोन्नेनी सांबा शिवा राव ने मीटिंग में जेर बहस मसाइल का इंकशाफ किया। 6ठे सालाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2024 शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। साइबराबाद 6ठी सालाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2024 की इख्तितामी तकरीब आज साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस परेड ग्राउंड में बड़े पैमाने पर मुनक्कद हुई। तेलंगाना रियासत के डीजीपी मिस्टर रवि गुप्ता आईपीएस ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर अविनाश महांती आईपीएस और अमले ने इन खेलों में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। Friends from the media, it's a great honor for us to have with us today in our midst the Director General of Police. He was kind enough to take out time from his extremely busy schedule to give us a good 3 hours today evening, and to my knowledge it is sir's first official event, police event after he has taken charge, and we didn't want to miss this opportunity to present before him all the talent, all the capabilities of Cyberabad Police. Iroju, as we conclude the sports and games meet, we inaugurated 2 facilities, oka open gym and oka cricket net practice facility. మనం ముందు కూడా ఇక్కడ మన ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ ఇనాగ్రేట్ చేసాం. ఈ ఇయర్లో వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ టు రీఫర్బిష్ మన వాలీబాల్ కోర్ట్స్ అండ్ ఆల్సో మన బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్. సో మన సైబరాబాద్ క్యాంపస్ ఇంత మంచి ఏరియాలో మనకి ఇంత పెద్ద 35 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. ఈ ఫెసిలిటీలో మన స్పోర్ట్స్ కి డెవలప్ చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. From the police, the mounted squad, the families of all the officers who have taken part in this sports meet, friends from the media and press. It's a matter of pride and honor for me to be here. The CPO saying that it's an honor for having me here. Probably it's the other way around. I'm very happy to be here amongst all of you, and even though our schedules may be very hectic, very busy, but these are occasions which cannot be missed. So when Avinash invited me a few days back, I readily agreed because I wanted to be with you. So I'm happy to be here today. The enthusiasm, the motivation and the excitement which I could see in all of you is infectious. In fact, I remember my old days when I was a school kid, and after that, whenever there were sports meets, we used to participate in academy days, college, etc. So I'm reminded of those old days when we used to take part in sports meets, and it was a wonderful feeling to be here today. And congratulations to your CP Garu
under his leadership, a wonderful. हिंदुस्तान में फलस्तीन के सफीर अदनान मोहम्मद जाबिर अबुल हैजा इतवार को हैदराबाद में SVK में CPI के ज़ेर एहतमाम फलस्तीन एकजहती इजलास में खिताब किया। इस मौके पर CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजा, सेक्रेटरी सैयद अजीज पाशा, पल्ला वसीन गुप्ता भी मौजूद थे। वेनुकोंडा मंडल शहर में मुनक्कदा जाहू BC पब्लिक मीटिंग में पालनाडु जिले तेलुगु देशम पार्टी के सदर और साबिक कानून साज मिस्टर GV अंजान्युलू और साबिक वजीर वेरुलू कोलू और रविंद्रा और रियासती तादीबी कमेटी के अरकान गुंडूपल्ली नागेश्वरा राव और नागेश्वरा ने शिरकत की। श्रीनु मनुकोंडा और शिवा प्रसाद राव विनुकोंडा हल्के के मुबसिर थे। आज शाम श्रीकाकुलम हल्के के गाड़ा मंडल के बुविराली गांव में बाबू सिक्योरिटी फ्यूचर गारंटी अवामी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और गलियों में हर घर में जाने के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने बाबू सिक्योरिटी फ्यूचर गारंटी मनी मैनिफेस्ट तेलुगु देशम पार्टी के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया। नौजवानों और खवातीन से वादा किया कि वो आने वाले दिनों में रियासत के अवाम के साथ देंगे। श्रीकाकुलम हल्के तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक MLA गुंडा लक्ष्मी देवी जो हर गली में कोचे में जाकर वादों की वजाहत करते हुए किताबचे तकसीम किए। ఇంకోటి ఎంతమంది పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఉంటే అంతమందికి సంవత్సరానికి 15,000 ఇస్తారు। 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఫ్రీగా ఇస్తారు। 3 ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఆడవానికి బస్సు కూడా ఫ్రీ। ఆ బాబుకు గ్యాస్ లేదు, అదే అందుకని ఆ బాబు ఇచ్చిన పేరేది। తర్వాత ఉద్యోగాలు వచ్చే వరకు కుర్రోళ్ళకి 3,000 నెలకి చదువుకున్నాం। 6 గ్యారెంటీ कांचू लक्ष्मणा राव की बेटी ने शीलागाम शंकुवाला सा गांव में राजूसवाला तकरीब में शिरकत की। श्रीकाकुलम हल्के के TDP के यूथ लीडरान और जॉइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर मिस्टर गोंडू शंकर गारू और मंडल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कांचू दशरथा, अरासवेली गोयाना राम मोहन राव, कांचू कुमार, पेधा लापू समहाचलम, साधु भास्कर, TNSF हल्के के सदर रेड्डी शंकर, भाई चीफ सरपंच के लिए साबिक MPTC एंडू मनाराव, संगुपुरम MPTC पंगा सत्यानारायणा, हल्के तेलुगु यूथ सेक्रेटरी गोंडू शियाराम सुंदर, साधु कोटी साधु प्रमेश, तंगी नरसिंह, बगू रामू, समाश्याम सुंदर ने भी शिरकत की। ऐवान के फ्लोर पर बहस के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए BRS लीडर T हरीश राव ने इतवार को कहा कि इनकी पार्टी ऐसा जवाब देगी जिससे कांग्रेस सरकार के जहनों को मजबूत कर दिया जाएगा। BRSP लीडर पार्टी के LB नगर असेंबली हल्के के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चैलेंज को जवाब दे रहे थे। हरीश राव ने कहा कि KCR की हुकूमत के 10 साल के दौरान मरकज का दबाव से खते नजर प्रोजेक्टों को KRMB के हवाले नहीं किया गया। हमने ये शर्त रखी थी कि पानी का 50% हिस्सा दिया जाए, श्री साइलम को हाइडल प्रोजेक्ट के तौर पर तस्लीम किया जाए और पीने के पानी का सिर्फ 20% हिस्सा लिया जाए। दफ्तर में रहने के 2 माह कबल ही कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के अवाम के मफादात को दाव पर लगाते हुए प्रोजेक्ट्स हवाले कर दिए। साबिक वजीर आबपाशी ने कहा कि रेवंत रेड्डी को इस मौजू पर कोई गिरफ्त नहीं है, इसलिए वो जहर उगल रहे हैं। 97वें ऑल इंडिया मराठी अदबी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमलनेर में 100 D4 जलगांव साल पुराना फलसफा मरकज है। अगर इसकी रीडेवलपमेंट की तजवीज हुकूमत के पास आती है तो इस पर मुस्बत गौर किया जाएगा। रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज यहां ये बात कही। इन्होंने ऑडियो विजुअल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मुंबई से बराह रास्त मीटिंग में शिरकत की। वो इस वक्त बात कर रहे थे कि हम मराठी लोक अदब की तहकीक और किताबी तहरीर के लिए खुसूसी ग्रांट देने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कॉरपोरेशन के अमलनीर मराठी चैम्बर के जेर एहतमाम 97वां ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन आज यहां प्रताप कॉलेज के मैदान में इख्तिताम पजीर हुआ।
शिल्पकला मुकाम पर रियासती हुकूमत के सरपरस्ती में मुनक़दा पद्म अवार्ड याफ्ता अफराद के एजाजी प्रोग्राम में सीएम रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी थे। पद्म विभूषण अवार्ड हासिल करने वाले श्री वेंकैया नायडू, फिल्म अदाकार श्री चिरंजीवी के साथ पद्मश्री अवार्ड याफ्ता श्री वेलु आनंदाचारी, श्री दासारी कोंडप्पा, श्री उमा महेश्वरी, श्री गुडम समाया, श्री गीतावत सोमलाल, श्री कोरेला विट्ठलाचार्य को वजीर आला ने एजाज से नवाजा। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर और हरीश रामाराव अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठी मुहिम के जरिए सियासी फायदे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। केसीआर ने एतराफ किया कि वो कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम और इसी वक्त मरकज के हवाले कर रहे थे जब रियासत की दोबारा तकसीम का एक मंजूर हुआ था। रियासत में बन निजाम शुगर फैक्ट्रियों की बहाली के लिए जल्द अज जल्द एक जामे रिपोर्ट फराहम करने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने काबीना ज़ेरी कमेटी को तजवीज पेश की। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में इस कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। शुगर सनती वजीर श्रीधर बाबू जो फैक्ट्रियों की बहाली कमेटी के चेयरमैन हैं, इनके साथ वजरा दामोदर राज, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, MLC श्री जीवन रेड्डी, MLA सुदर्शन रेड्डी, मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। आज करारी असेंबली में 2 सरकारी स्कूलों की इमारतों का संग बुनियाद रखा गया। यहाँ 4 स्कूल 2 शिफ्टों में चल सकेंगी। अगले 1 साल में तैयार होने के बाद ये स्कूल 10,000 से जायद बच्चों को अच्छी और मुफ्त तालीम फराहम कर देगी। दिल्ली भर में जहां भी स्कूलों की कमी है वहां नए स्कूल बनाए जाएंगे। अमीर का बच्चा हो या गरीब का, यहाँ सबको अच्छी और मुफ्त तालीम मिलेगी। निजामाबाद के मल्लापल्ली से अगवा किया गया 7 साला लड़का मोहम्मद मिनहाज को निजामाबाद पुलिस ने 3 दिन बाद बाजियाब करते हुए अगवा में मुलविस मर्द और खवातीन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और मगविया लड़के को मां बाप के हवाले कर दिया। DCP जयराम ने आज पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 7 साला मोहम्मद मिनहाज वलद मोहम्मद अय्याज साकिन मल्लापल्ली निजामाबाद 30 जनवरी शाम 5 बजे लापता था। अफराद खानदान के काफी तलाशी के बाद 31 जनवरी को लड़के के लापता होने की शिकायत पुलिस टाउन में दर्ज करवाई। लड़के की तलाशी के लिए CCTV कैमरे के फुटेज के जरिए तलाशी पर इसी मोहल्ले के रहने वाले सुहेल खान नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर लड़के को बिठाकर ले जाते हुए नजर आया। सुहेल को पुलिस ने तलाशी के बाद हिरासत में ले लिया और लड़के के अगवा और लड़के को फरोख्त करने के सिलसिले में तफ्तीश करते हुए मालूमात हासिल की। जो है मिनाज बोल के है, 7 साल उम्र का है। ये सोफिया रिजवान मस्जिद में जो है वो अरबी पढ़ रहा है। उनको जो है मालापल्ली में रहते हैं। वो उनका वालदा और वालिद जो है शाहीन बेगम और मोहम्मद अयाज है। इनको 4 बच्चे हैं। वो लोग घर में एक साथ रहते हैं। तो बच्चा जो है सुबह मदरसा को जाके पढ़ के फिर वापस आते हैं। तो इनको जो है उनका बस्ती का सोहेल बोल के एक बच्चा जो है उनको मोटरसाइकिल में लेके जा रहा था। तो वो हम लोग को ये किडनैपिंग का कंप्लेंट जो है 31 को हमारा को कंप्लेंट आया था। इमीडिएटली हम लोग जो CCTV फुटेज देखे तो एक बच्चे के संगात नॉन पर्सन के साथ सोहेल के साथ जा रहा था। वो TS 16FH 435 का गाड़ी में गया और सोहेल को पहचान के उनके इंट्रागेशन करके दूसरे किसको दिए क्या दिए बोल के मालूम हुआ। तो उसको शेख आबिद और शबाना बेगम जो है मालापल्ली में रहते, सॉरी आटोनगर में रहते, वो लोगों को ये बच्चे को बेचे से है। तो उसके संगात फिर गैंग रिंग कौन है बोल के पूरा हैदराबाद का एक टीम स्पेशल टीम फॉर्म करे। रमेश SI और इंस्पेक्टर जो है ACP साहब के सुपरविजन में कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस में पूरा टीम बना के इसको 3 दिन के अंदर बच्चे को जो है किडनैप बच्चे को जो है रिकवरी करके उनके पेरेंट्स जो है शाहीन बेगम को और मोहम्मद अयाज को हैंड ओवर कर दिए। एक्चुअली क्या है, ये बच्चा जो है नॉन पर्सन जो बाजू में रहता वो सोहेल के संगत तो गया, उनके संगत जरा उनके आने जाना है तो एक ही बस्ती में रहता। अचानक क्या बोल के बच्चा उनके संगत गया। तो उसके बाद उनको दूसरे लोगों को बेचे सो है, ये 3 लाख रुपए में बेचे।
ये सोहेल को जो है 70,000 रुपये दिए और ये शेख आबिद और शबाना बेगम को जो 1,70,000 ले लिए और हैदराबाद में एक जरीना बोल के है उनको एक 10,000 और आलिया बोल के है उनको भी थोड़े पैसे दिए। इसको कौन कौन कितने लोगों को इन्वॉल्वमेंट है क्या पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इससे पहले भी दूसरे जगह में दूसरे मुकाम पे एक गैंग कुछ बच्चों का किडनैप कर रहे क्या बोल के वो भी एंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें क्या है बोले तो बच्चा जो है बहुत तेज है, ये मेनाज बोल के बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो शार्प है, उसके बाद से इनको सेलेक्ट करके किडनैप करे जैसा दिख रहा है। ये सोहेल जो किडनैप करा वो भी एक ही बस्ती का है। इसमें हमारा विनती क्या है बोले तो आजकल जो है पहचानत के नहीं, बाहर के लोग नहीं, पहचानत के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग भी आपके बच्चों को कौन किसके संगत जा रहे हैं, क्या किधर जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जरा एक नज़र रखे तो अच्छा रहेगा। क्यों बोले तो फिर मालूम ऐसा आदमी भी लेके जाके ऐसा बेच रहे, तो ये बाहर गिर गए तो फिर मुश्किल होता था पकड़ने में। हैदराबाद में है बोल के विद इन द स्टेट में बोल के इमीडिएटली 3 दिन के अंदर पकड़ लेके मुजरिमों को पकड़ के और माँ बाप को बच्चे को हैंड ओवर कर दी। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थी आज की अहम खबरें, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।